अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौरी नीलाराम है। आई एम associate professor in Government Karachi College. My subject is physics. Today we start from second year's course, chapter number 11. And the chapter's name is heat. And the topic's name is heat as a form of energy in transit. So many scientists have tried to explain the nature of heat. Up to the beginning of 19th century, it was considered a weightless fluid called calorie, which is existed in every material body. Hot bodies were said to contain more calorie than the cold bodies. The caloric theory could explain satisfactorily many processes, such as heat conduction and mixing of substance in a calorimeter. The concept of heat fluid was challenged by Count Rumford and other scientists, that heat not as the flow of substance caloric but as transfer of energy when heat flows from a hot body to the cold one. इसका मतलब ये हुआ, मैं उर्दू के स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं ताकि दोनों स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि जो है वो काफ़ी साइंटिस्ट ने इस पर काम किया कि हीट असल में है क्या। तो ये था कि ये कैलोरिक है, फ्लूइड है जो कि हर मटेरियल में होता है, स्पेशली ज़्यादा वो हॉट बॉडीज़ में होता है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड में। और इसको चैलेंज सबसे पहले काउंट रमफर्ड ने किया था और कहा कि असल में जो है ये एक किस्म की हीट है जो कि कोल्ड हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र हो जाती है। It is energy that is being transferred from the hot to the cold body. Thus, heat referred to energy that is transferred from one body to another because of difference in temperature. Heat is not the energy that a body contains in it. It refers to the amount of energy transferred from hot to cold body. इसका मतलब ये है कि हीट जो है वो हमेशा एक किस्म की मुंतकली है एक एनर्जी की जो कि हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है और या एक किस्म की कन्वर्जन आप कहें इनटू एन इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब यह है कि इंटरनल एनर्जी क्या है। एक्चुअली इट इज़ द सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। The unit of heat as for any forms of energy is joule. Now अब इसको आप ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। सो द मिनी टॉपिक इज़ टेम्परेचर। इफ़ यू टेक टू बॉडीज, वन इज़ हॉट एंड द अदर, it is not possible to determine that how much hotter it is at a particular time than the other. मतलब ये कि हम दो बॉडीज़ के बताएं कि ये इससे ज़्यादा गर्म है, तो ये डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हमें जो है सिर्फ हाथ लगाने से पता नहीं चलेगा जब तक कि हम मखसूस कोई ऐसा आला लें जो कि इसके दर्जा हरारत बताए कि ये कितनी गर्म है, एक से दूसरी कितनी गर्म है। तो उसको डिफाइन करने के लिए एक थर्मल इक्विलिब्रियम हम इसको कहते हैं, यानी अगर आप एक चीज़ में गर्म पानी रखते हैं दूसरे में ठंडा रखते हैं तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन तब पैदा होगी जब दोनों का टेम्परेचर यकसां हो जाएगा। सो उसको हम ख़ास मखसूस कंडीशन में दोनों को रखेंगे, कोल्ड बॉडी को भी, क्योंकि हॉट बॉडी से वो जो पानी है गर्म हम चीज़ रख रहे हैं वो कोल्ड की तरफ आ जाए और दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जब तक यकसा नहीं हो जाता, ठीक है, तो इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। Now scales of temperature. It is not possible to determine the temperature of a body accurately by touching. जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि हाथ लगाने से पता नहीं चलेगा, इसको मेजर करने के लिए हमें किसी आले का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हम we can take two reference points that are fixed and easily reproducible. That is the value of fixed points.
must always be the same under similar condition. The scale depends upon the fixed points, the melting point of ice and boiling points of water at standard pressure. Standard pressure क्या होता है? 76 centimeter of mercury are taken to be the two fixed points, and difference between these 2 points is divided into different ways called scales of graduations. जैसे सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, तो हम इन दोनों को जो है वो एक कंडीशन में रखकर उनकी पॉइंट्स उनको हम डिवाइड करेंगे, कंपेयर करेंगे. तो 1 Celsius scale, this interval between these two fixed point is divided into 100 equal parts. The lower fixed point is marked 0 and upper fixed point is 100. यानी ये समझें कि जो एक फ्रीजिंग पॉइंट यानी बर्फ का जो है वो पॉइंट क्या होता है? 0 होता है. और पानी किस पर बॉयल होता है? 100 पर होता है. और ये पूरा स्केल जो है वो इक्वली डिवाइडेड होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तौर पर. ईच पार्ट दस रिप्रेजेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 डिग्री सेल्सियस में. नाउ हम बात करेंगे सेल्सियस फ़ारेनहाइट की. ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज मेजर्ड 32 एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज 212. यानी आपका एक लिहाज से जो फ्रीजिंग पॉइंट टाइप होगा वो 32 होगा और बॉइलिंग 212 होगा. And the interval between these is equally divided into 180 equal parts. Each part represents 1 degree Fahrenheit. There is another scale called the Kelvin scale. The lowest temperature on the scale is minus 273, सबसे कम. Thus the 0 on the Celsius scale will be on 273 on the Kelvin scale, written as 273 Kelvin, and 100 on Celsius scale will be 373 Kelvin. The size of the degree on the Kelvin scale is the same as that of the Celsius scale. दोनों का size एक सा ही होगा. In order to drive relationship between Celsius and Fahrenheit scale, let the two thermometers be placed in one pot, and the mercury in each thermometer rises to the same level in figure. यहाँ पर फिगर आप बुक में देखेंगे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के स्केल हैं, और यहाँ पर आपको कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिए हुए हैं कि सी बी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू एफ माइनस 32, 212 माइनस 32. मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 32 क्या है, 212 क्या है, तो ये आप इसको देखिएगा. और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो c माइनस 0 अपॉन 100. अब इसको हम थोड़ा सा ड्राइव और करेंगे तो f माइनस 32 अपॉन 180 होगा. 212 में से माइनस 32 करेंगे तो 180 बचेगा. c माइनस 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो c अपॉन आप 100 लिख देंगे. और f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू c अपॉन 5. ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए ये एक्सप्रेशन लाएंगे, जिनकी डिटेल मैंने आपको जो है वो नोट्स में लिखवाई भी है. ठीक है, तो उम्मीद है ये मैंने आपको डिटेल में एक टॉपिक ख़त्म किया है. यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. और अगर कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो आप ज़रूर जो है वो इसमें आप पूछ सकते हैं इसी वेबसाइट के ज़रिए जहाँ पर मैंने ये लेक्चर डाला है. तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. थैंक यू. टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफ़िज़.